My grandmother always went to school with me because the school attached to temple. So in that picture also you can see here, in this picture what is said, this picture is saying that there is a grandson and grandmother. So they both are going somewhere. So according to this lesson they are going to school. They both are going to school. They are going to school together. And what was the work of grandmother here in the school? No, she was not going to school. Khushwant Singh was going to school and grandmother was going to temple, because temple and school were attached to each other. So when Khushwant Singh was taking his classes, that time grandmother had to stay in the temple. So दादी और खुशवंत सिंह दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे. दादी स्कूल की बजाय मंदिर में जाती थी और खुशवंत सिंह स्कूल में. तो दोनों स्कूल की बिल्डिंग और टेम्पल की जो बिल्डिंग थी वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड थी, मिली हुई थी. जब खुशवंत सिंह अपनी क्लासेस ले रहा होता था तो दादी मंदिर में जाके वहां पे भजन कीर्तन करती थी. आगे, यस, द प्रीस्ट टोट अस. So who is us here? Khushwant Singh and his friends. So the priest taught us the alphabet and the morning prayer. In the priest, you can see a photograph of priest here, and that priest is teaching them. And what he was teaching them? He was teaching them alphabet and morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures mean पवित्र किताबें, पवित्र पुस्तकें. वो दादी जी वहाँ पे पढ़ती थी. सो जो वहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी जी थे वो बच्चों को, खुशवंत सिंह और उसके साथी जो थे उनको अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. और बच्चे जो थे बरामदे में बैठ जाते थे, एंड दीज ऑल चिल्ड्रन वर सिंगिंग अल्फाबेट्स and they were playing prayer in a chorus. So you can see here alphabet song with lyrics. Yes, many students are there, and these all students were speaking A, B, C, okay, and morning prayer. And that time grandmother was reading scriptures to sit in temple. When we had both finished, ओके, जब दादी और खुशवंत सिंह दोनों फिनिश कर लेते थे, वी वुड बैक टुगेदर. सो दे वर कमिंग बैक टुगेदर टू हाउस. तुम अपनी खुशवंत सिंह अपनी स्टडी पूरी करके, अपनी पढ़ाई दिन की पूरी करके, और उधर से दादी जी जो थे अपना काम पूरा करके, पूजा करके वो घर को वापस आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. So what they get? Yes, when they came out from the temple, so what did they see? They saw that there were many dogs. There were many dogs, and these dogs were waiting for them on the temple door. At the temple door, they followed us, our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Yes, और वो कुत्ते जो थे आपस में एक दूसरे के साथ घुर्राते, ग्रोलिंग करते, झगड़ते. किस बात के लिए? क्योंकि दादी ने उनको रोटी डाली थी और उन रोटी के लिए वो कुत्ते आपस में झगड़ा करते थे. यू कैन सी दीज आर द ग्रोलिंग, ग्रोलिंग डॉग्स एंड फाइटिंग. Next one is when my parents were comfortably settled in the city. So you can see the photograph of city, and now the parents of Khushwant Singh settled there comfortably in city, and they sent for us, and they were also invited to city. ओके, दादी और खुशवंत सिंह जो गांव में रह रहे थे, दे वर यू कॉल्ड बाय देयर पेरेंट्स कि यू हैव टू कम हियर. तो वो भी वहां पे चले जाते हैं. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. और ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती में. किसकी? दादी और खुशवंत सिंह की दोस्ती में. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. यस यू, हालांकि वो एक ही रूम में रहते थे शहर में, बट अब दादी साथ में स्कूल नहीं जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. सो नाउ खुशवंत सिंह वॉज गोइंग इन अ मोटर बस टू स्कूल. ही वॉज नॉट गोइंग विद ग्रैंड मदर, नो. नाउ ही वॉज गोइंग इन स्कूल इन अ मोटर बस. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. और वहां पे फिर स्ट्रीट्स में कुत्ते भी नहीं थे, डॉगीज नहीं थे. तो फिर क्या था? सी टुक द फील्ड स्पैरोस इन द कट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. Now, what was the grandmother doing? Grandmother को अब खाना खिलाना था. Now the dogs were not there, so now she was feeding to sparrows.
वो घर के आंगन में बैठ जाती और घर के आंगन में बैठ के वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी, चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। नेक्स्ट इज she could not help me with my lessons and now grandmother was not helping me। खुशवंत सिंह की हेल्प नहीं कर रही थी दादी अब किसमें, उसकी पढ़ाई में, because she did not believe in the things they taught at the English school। Okay, she was not believed and she didn't believe in the things। दादी को यकीन नहीं था उन चीजों पे। देखिए, those things were taught him at the English school। जो चीजें इंग्लिश स्कूल में इसको पढ़ाई जा रही थी वो चीजें दादी को पसंद नहीं थी। Okay, grandmother was distressed and you can see grandmother जो थी नाराज हैं, बैठी हुई हैं, उदास हैं, that there was teaching about God, कि वहाँ पे भगवान के लिए कुछ नहीं सिखाया जाता और ना ही पवित्र किताबों के बारे में सिखाया जाता है। One day I announced that, और एक दिन मैंने ये भी कह दिया what that we are being given music lessons, कि हमें म्यूजिक के लेसन्स दिए जाते हैं, हमें म्यूजिक सिखाया जाता है, कि हमें म्यूजिक सिखाया जाता है। तो क्या हुआ, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो इस बात से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, और दादी के लिए ये म्यूजिक सीखना एक बहुत ही गंदी हरकत थी, बहुत ही नीचा काम था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ फॉरलर्स एंड बेगर्स। ओके, ये जो था, ये जो डूम और भिखारियों का काम है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, ये भले लोगों का काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। दादी जी ने बोला कुछ नहीं, बट उसकी साइलेंस जो थी वो बता रही थी कि दादी इस बात से खुश नहीं है। यस, नेक्स्ट वन इज व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। नाउ द राइटर खुशवंत सिंह डिसाइडेड टू गो अब्रॉड। ओके, अब वो विदेश जाने के बारे में सोच रहा है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना होगा। सो आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। मुझे भी ये भी पता था कि मेरी दादी उदास होगी कि मैं जा रहा हूं, तो मेरी दादी इस बात से उदास होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मुझे दादी से 5 साल के लिए अलग होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। शी वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर दैट। उसके बाद दादी जी खुश नहीं होगी। दैट शी केम टू लीव मी ऑन द रेलवे स्टेशन। फिर भी दादी मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती है। हर लिप्स मूड इन प्रेयर। उसके जो लिप्स थे अभी भी वो हिल रहे थे प्रेयर करते हुए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका जो दिमाग था वो प्रेयर में गुम था, खोया हुआ था। Her fingers were busy telling bits of her rosary, और उसकी जो उंगलियां थी वो क्या कर रही थी, उनकी उंगलियां जो थी वो माला जप रही थी, वो माला जपने में बिजी थी। Silently she kissed my forehead, और चुपके से दादी जी ने मेरा माथा चूमा। Yes, you can see photograph of दादी ने माथा चूमा। And I thought that, okay, I thought that, और मैंने सोचा क्या, it was the last physical contact between us, कि ये हमारे बीच में लास्ट कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है हमारे बीच में, इसके बाद दादी मुझे नहीं मिलेगी। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 5 years काई केम बैक। फिर वो 5 सालों के बाद फिर वापस अपने घर आता है, एंड वॉज मेट एट हर एट द स्टेशन, और दादी से स्टेशन पे ही मिलता है। शी डिड नॉट लुक एट ए ओल्डर। दादी बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। दादी अभी भी कुछ नहीं बोली, अभी उनके पास बोलने के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल सी हग्ड मी इन आर्म्स, और जब दादी ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मुझे हग किया, मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो मैं दादी जी को उसकी प्रेयर कहते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, बिल्कुल पहले ही दिन ऑफ माई अराइवल, आने के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद स्पैरोज। उन्होंने दादी ने गांव वाले स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाया। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। उसकी चिड़ियाओं के साथ उसने अपना समय बिताया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम के समय दादी में एक चेंज आ गया, दादी में एक बदलाव देखा मैंने। शी डिडंट प्रे, दादी ने प्रेयर नहीं की, बिकॉज दादी जो थी वो बहुत ही बिजी थी किसमें, प्रेयर करने में। बट उस शाम को, जिस शाम को राइटर घर पहुंचता है 5 साल के बाद पढ़ाई करके, तो उस टाइम पे दादी ने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने गांव वाली या पड़ोस वाली औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एंड ओल्ड ड्रम, और उसने एक ओल्ड ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हार, कई घंटों तक, शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलाबिटेटेड ड्रम, उसने फटे हुए पुराने से ड्रम को क्या किया, सैगिंग बजाया, उसकी फटी हुई स्किन को कई घंटों तक बजाया। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, ओके, और योद्धाओं के स्वागत में, के वेलकम में जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत दादी ने मेरे आने पे, मेरे वापस आने की खुशी में गाए। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल,
और फिर जब राइटर घर आ चुका होता है तो उससे ही नेक्स्ट मॉर्निंग जो आती है, दादी ने सब कुछ किया है ना, दादी ने उसका वेलकम किया, दादी ने वहाँ पे आके लोग पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, बैंड बजाया है ना, ढोल बजाया, गीत गाए। पर उससे नेक्स्ट डे क्या होता है कि दादी बीमार हो जाती है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। दादी ने बताया कि अब वो जाने वाली है, उसका अंत आ चुका है। इन द लास्ट, अंत में, लास्ट में, शी डिडंट वांट टू वेस्ट द टाइम। और वो कहती है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सो शी स्टार्टेड प्रेयर्स। तो उसने अपनी प्रेयर्स करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम हार्स, कुछ घंटे के बाद, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो होंठ थे वो हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जो रोजरी थी, रोजरी मीन जो माला थी, मनकों की माला जो थी, वो उसके हाथों से गिर गई। That was the lesson, the portrait of the lady, and that lady was the grandmother of Khuswant Singh, a great writer, a great Indian writer, English writer. So that was, and when grandmother went away from this world, then some sparrows were sitting near her, and they were mourning. These all sparrows were mourning. They didn't take the take the pieces of the chapatis on that day. They leave the chapatis and flew away. उस दिन उन चिड़ियाओं ने खाना तक नहीं खाया, वो भी दादी के लिए दुखी थी। जब राइटर की मम्मा ने उनके लिए खाना फेंका, रोटी के टुकड़े फेंके, तो वो रोटी के टुकड़े वहीं पे पड़े रहे, उन्होंने उठाया नहीं। और चिड़िया वहां से बिना चरप किए, बिना बोले वहां से उड़ जाती हैं, चली जाती हैं। और नेक्स्ट डे जो टुकड़े फेंके गए थे चिड़ियाओं की तरफ, वो टुकड़े नेक्स्ट डे उठा करके, उनको इकट्ठा करके झाड़ू से उसको डस्टबिन में ही डालना पड़ा। So this was our second video regarding that lesson. Thank you. Have a nice day.